हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लांट लोकेशन का प्रोसेस। तो क्या होता है प्लांट लोकेशन का प्रोसेस? लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हम प्लांट लोकेशन ही डिस्कस कर रहे थे। तो प्लांट लोकेशन से रिलेटेड सब टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लांट लोकेशन प्रोसेस। ठीक है, प्लांट लोकेशन डिसीजन प्रोसेस। तो यहाँ पे प्लांट लोकेशन प्लांट लोकेशन decision process. So following steps serve as a guideline for making location decision. एक तरीके से गाइडलाइन की तरह काम करते हैं ये सारे स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप्स these stages follow by the production manager or the business person regarding to the making the decision and planning about the plant location. Okay. So first one है define the location objectives and associated constraint. The location objective and the associated constraints are defined on the basis of view and requirements of the promoters, owners, employees, suppliers and the customer of the firms. Okay. So due to this, first of all, you have to decide and clear your location objectives. आपको अपनी location के objectives clear होनी चाहिए. You have to also well clear about the area of the customer, supplier, promoter, owners, employees. ये सारे क्या है इम्पोर्टेंस फैक्टर्स, एक तरीके से फैक्टर्स की तरह ही काम करते हैं. सो ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग दीज मैटर्स मस्ट बी क्लियर. तो पहला स्टेप यही है प्लांट लोकेशन डिसीजन का, डिफाइन द लोकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड एसोसिएटेड कॉन्स्ट्रेंट्स. तो ये सारे एसोसिएटेड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं फॉर मेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द प्लांट लोकेशन. सेकेंड वन है identify the relevant decision criteria. So firms should select a location by formulating relevant decision criteria. The criteria should include several economic factors such as labor, material, cost, non-economic factors such as impact of the plant on the surrounding environment. Okay. So second one is also very important. So, and that is identify the relevant decision criteria. तो क्राइटेरिया के बेसिस पे ही हम क्या है डिसीजन मेकिंग करते हैं. कुछ क्राइटेरिया, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको सेट करने होंगे, उनके बिहाफ पे आप अपने प्लांट लोकेशन के डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करोगे. ठीक है. अगर हम किसी भी कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट सर्टेन क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स. On the basis of that standards and criteria, you have to make a proper plan. You have to make a proper fruitful plan for your objects. Okay. Same thing follow in the plant location decision process. जैसे कि क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि लेबर है, मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि हैं तो कितनी कॉस्ट लगेगी. तो ये सारी चीज़ें वेल क्लियर करनी चाहिए. उसके बाद थर्ड स्टेप है रिलेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्राइटेरिया यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स. आप मॉडल्स यूज़ करते हैं. यूजिंग द मॉडल जैसे कि ब्रेक इवन एनालिसिस है, लीनियर प्रोग्रामिंग है या फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स एनालिसिस है. The relevant decision criteria should be evaluated. So it is preferred to model the location decision process in systematic and quantitative manner. So it is difficult to
quantify the intangible criteria. Judgment of responsible managers is taken into the consideration to obtain solution. Okay. Next one है evaluate the alternative location. So firm should collect the possible primary and secondary data to evaluate the different alternative locations. Primary data is the data that is collected a specific purpose for the first time, और secondary data जो हम already जैसे कहीं से हमने capture किया है. So firm mainly use survey method like personal interview, telephonic interview, mail interviews to collect the primary data. Secondary data is the data that is already available but might have been collected for the some other purpose by some other institutions. Publications of Centers Monitoring Indian Economy, Journal of Federation of India, Chamber of the Commerce and Industry, Central Statistical Organization are some of the secondary data sources. So firm collect the possible primary and secondary data and they evaluate different alternative locations on the basis of the data using the given decision criteria. ठीक है, तो इस हिसाब से फर्स्ट प्राइमरी और सेकंड डेटा कलेक्ट करने के बाद इवेल्युएट किया जाता है अल्टरनेटिव लोकेशंस को. उसके बाद लास्ट है सिलेक्ट द लोकेशन दैट बेस्ट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया. अ लोकेशन विच इज़ मीट टू द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जो आपके जैसे कि स्टार्टिंग में जो आपके ऑब्जेक्टिव थे उसको प्रॉपरली कोरिलेट कर रही है, उससे प्रॉपर मैच हो रही है, and satisfy the criteria to provide benefit to the community should be selected. Okay, so these are the important steps taken by the business persons for the making up decision process related to the plant location. Okay, and the topic is known as plant location decision process. तो इस तरीके से plant location का decision process complete होता है by following these 5 stages, and the stages are identifying the location objectives and associated constraint, identify the relevant decision criteria, relate the objective to the criteria using appropriate model, evaluate the alternative location, select the location best satisfy the criteria, evaluate the alternative locations, or select the location that best satisfy the criteria. Okay. Okay student, thank you very much. If you have any problem, if you have any doubt, then you can again discuss. ठीक है. So now plant production process, plant layout and plant locations topic has been finished. ये टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है. अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट का रिवीजन, जो कि है ऑपरेशंस प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. जैसे कि इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सीक्वेंसिंग क्या होती है, एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, शेड्यूलिंग किसे कहते हैं, और जो मेन टॉपिक है जो कि हम स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है, इसमें आपको याद होगा हमने इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी मॉडल्स, जस्ट इन टाइम एक्सेट्रा, इस तरीके के टेक्निक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए.
तो दोबारा से इसको हम रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारा जो क्या है रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप भी उन सभी टॉपिक की मार्क लिस्ट बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप बेटर तरीके से उनको पढ़ सको और प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। और अगेन मैं कह रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट से, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू कैन अगेन डिस्कस। किसी भी यूनिट के किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई डिस्कशन करना हो, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे कन्वे कर दीजिए, उसी टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को तो मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप ये पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। एंड वन थिंग मोर, जितने भी टॉपिक मैं डिलीवर कर चुका हूँ आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। और मैच कर लीजिए आप अपने सिलेबस से। अगर कोई भी टॉपिक आपके अकॉर्डिंग अगर कोई टॉपिक रिमेन है तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगेन, और किसी भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।